فضا میں گرجتے طیارے جب زمیں بوس ہوتے ہیں تو صرف دھواں نہیں اٹھتا، عالمی طاقتوں کے غرور بھی راکھ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان نے جب بھارتی رافیل طیارے مار گرائے تو یہ محض ایک عسکری کامیابی نہیں تھی، یہ دنیا کو دکھا دینے والا پیغام تھا کہ اربوں ڈالر کے سودے بھی غیرت مند قوموں کے جذبے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے نے نہ صرف بھارت کے عسکری خواب چکنا چور کیے بلکہ فرانس کی دفاعی کمپنی جو رافیل طیاروں کی خالق ہے اسے بھی زمین دکھا دی۔ جیسے ہی خبر پھیلی کمپنی کے شیئر زمین بوس ہونے لگے، سرمایہ کاروں نے ہاتھ کھینچا اور پیرس کی فضا میں وہی بے یقینی کا سایہ منڈلانے لگا جو دلی پر چھایا ہوا تھا۔ اب کوئی بعید نہیں کہ کل فرانسیسی کمپنی خود دلی کے در پہ آ کے کہے ہمارے طیارے واپس کر دو، ہم نے تمہیں لڑنے کے لیے دیے تھے، شرمندہ ہونے کے لیے نہیں۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں جنگیں صرف میدان میں نہیں عالمی منڈیوں میں بھی لڑی جاتی ہیں، اور وہاں پر پاکستان نے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی ملک یا کمپنی کی ساکھ داؤ پر لگی تو انہوں نے نقصان برداشت کرنے کی بجائے اپنی مصنوعات یا معاہدے واپس لینے میں ہی عافیت جانی۔ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی کمپنی اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے ہی بیچے گئے ہتھیار واپس مانگ لے۔ ایک ایسی ہی مثال ارجنٹینا اور برطانیہ کی جنگ کے دوران سامنے آئی تھی، جب فرانس نے ارجنٹینا کو دیے گئے ایکسرٹ میزائل کی فراہمی کو روک دیا تھا، کیونکہ وہ میزائل برطانوی جنگی جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور فرانس یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہتھیار عالمی سطح پر ایک اتحادی ملک کے خلاف استعمال ہوتے دکھائے جائیں۔ یہ محض سیاسی مصلحت نہیں تھی بلکہ کمپنی کی ساکھ، بین الاقوامی دباؤ اور مالی مفادات کا نازک توازن تھا جس نے فرانس کو اس فیصلے کے اوپر مجبور کیا۔ اب اگر ہم اس رافیل کی بات کریں تو یہ طیارہ فرانس کی دفاعی صنعت کا تاج ہے، اور جب پاکستان نے نہ صرف بھارتی رافیل کو زمین بوس کیا بلکہ یہ عمل عالمی میڈیا اور مالیاتی منڈیوں کی شہ سرخیوں میں آیا تو یقیناً یہ فرانس کی کمپنی ڈسالٹ ایویشن کے لیے ایک شدید دھچکا تھا۔ کمپنی کے شیئرز کی تیزی سے گرتی قیمتوں نے نہ صرف سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کیا بلکہ اس سوال کو بھی جنم دیا کہ کیا ڈسالٹ اپنی مصنوعات ایسے ممالک کو فروخت کر رہا ہے جو ان کی ٹیکنالوجی کو سنبھال نہیں سکتے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پرانی مثالیں نئی حقیقتوں سے جڑتی ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں فرانس نہ صرف بھارت سے رافیل کی کارکردگی پر سوال اٹھائے بلکہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے انہیں واپس لینے کا بھی تقاضا کرے، کیونکہ بین الاقوامی دفاعی صنعت میں عزت اور اعتماد صرف میزلز یا انجن سے نہیں ہوتا بلکہ ان کی ساکھ سے جڑا ہوتا ہے۔ اور ایک بار پھر جنوبی ایشیا کے افق پر ہلچل مچی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری اس کشیدگی میں اور جنگ میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب خبریں یہ سامنے آئیں کہ پاکستانی فضائیہ نے بھارتی رافیل جنگی طیارے مار گرائے اور 3 گرائے، مجموعی طور پہ 5 جنگی طیارے مار گرائے۔ اس خبر نے نہ صرف جنگی توازن میں ہلچل پیدا کی بلکہ عالمی سرمایہ کاروں کی دنیا کو بھی چونکا دیا۔ جیسے ہی یہ اطلاعات سامنے آئیں، ڈسالٹ کے اوپر اس کا فرق پڑنا تھا وہ بعد کی بات تھی۔ چینی طیارہ ساز کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن یعنی CAC جو JF-17 تھنڈر بنانے والا ادارہ ہے، اس کے شیئرز کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا جانے لگا، کیونکہ ان کے مقابلے میں ہوا کے اندر کون تھے؟ جو پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے بننے والے طیارے تھے، اور جو چائنا کی طرف سے ہمیں تحفہ کیے گئے طیارے، یعنی 2 JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C جسے رافیل کا توڑ سمجھا جاتا ہے۔ ادھر اس کے شیئرز میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو دوسری جانب کہانی پلٹی۔ فرانس کی مشہور کمپنی ڈسالٹ ایویشن جس نے رافیل طیارے تیار کروائے تھے، اس کے شیئرز تنزلی کا شکار ہوئے۔ یہ ایک علامتی دھچکا تھا اس بیانیے کو جو بھارت کئی برسوں سے پیش کرتا آ رہا تھا کہ رافیل جیسے مہنگے اور جدید طیارے اس کے لیے خطے میں ایک ناقابل تسخیر برتری کی علامت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے سے کچھ ہی دن پہلے بھارت نے فرانس کے ساتھ $7.4 ارب کا معاہدہ کیا، جس کے تحت بھارتی بحریہ کے لیے 26 رافیل طیارے خریدے جانے تھے۔ ان میں 22 سنگل سیٹر تھے اور 4 جو تھے وہ ٹوئن سیٹر تھے۔ اس سودے کو بھارت نے اپنی بحری طاقت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ایک بڑی پیشرفت قرار دیا تھا، اور فرانس کو بھارت کا دوسرا بڑا اسلحہ فراہم کرنے والا ملک قرار دیا جا رہا تھا۔ لیکن اب جب میدان جنگ میں ایک نسبتاً سستے اور بھارت کے نزدیک بظاہر کمزور سمجھے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C جیسے طیاروں نے رافیل جیسے مہنگے طیاروں کا سامنا کیا، ان کو گرایا،
तो सवाल उठने लगे कि क्या महंगे हथियार ही हमेशा कामयाबी की जमानत होते हैं। ये सूरत हाल ना सिर्फ दिफाई मनसूबाबंदी को नए जाविये से देखने पर मजबूर कर रही है, बल्कि ये भी जाहिर कर रही है कि भारत के अस्करी अज़ाइम और उसकी सरमायाकारी सिर्फ असलहा खरीदने तक महदूद नहीं रह सकती। जब तक अमली कारकर्दगी और हरबी ज़हानत का मुजाहिरा नहीं होता, अरबों के मुआहिदे भी ज़मीनी हकाइक को बदल नहीं सकते। भारत की दिफाई पॉलिसी इस वक्त एक दोहरी हिकमत अमली का अक्स पेश कर रही है। एक जानिब वो फ्रांस से जदीद राफेल तैयारे खरीद कर खुद को जदीद तरीन फजाई ताकत के तौर पे पेश कर रहा है। दूसरी तरफ वो अपने रिवायती रूसी साख्ता हथियारों से छुटकारा पाके मगरबी अस्करी इन्हसार को फरोग दे रहा है। और भारतीय वजारत दिफा ने ऐलान किया था कि ये नए राफेल तैयारे 2030 तक भारत को मौसूल हो जाएंगे, जबकि उनके अमले की तरबियत के लिए फ्रांस और भारत में मुश्तरका तौर पर तैयारी करवाई जाएगी। हुकाम ने यह भी कहा था कि यह मुआहिदा ना सिर्फ जदीद अस्करी ताकत को मजबूत करेगा, बल्कि हजारों रोजगार के मौके भी पैदा करेगा, जिनका फायदा कई छोटे बड़े कारोबारी इदारों को पहुंचेगा। और यह सौदा जो था, यह भारतीय कौमी सलामती काउंसिल की मंजूरी से तय पाया था, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की। इस वक्त भारतीय फजाइये के पास 36 राफेल तैयारे हैं, 3 डाउन हो चुके हैं। बहरिया अब भी रूसी साख्ता MiG-29 तैयारों पर इन्हसार करती है, वो भी एक डाउन हो चुका। भारत का हदफ अब अस्करी इन्हसार को रूस से हटाकर मकामी पैदावार और मगरबी टेक्नोलॉजी की जानिब मोड़ना था, ताकि पाकिस्तान और चीन के साथ उसकी सरहदों पर तैनात अफवाज को जदीद सहूलियात फराहम की जा सके। लेकिन इस नए मुआहिदे के साथ यह सवाल जन्म लेना शुरू हुआ कि क्या सिर्फ जदीद हथियारों की खरीदारी से वो खामियां खत्म हो सकती हैं जो भारतीय फौज को माजी में महंगी पड़ चुकी हैं? क्या तरबियत, हिकमत अमली और अंदरूनी नज़्म ज़ब्त के बगैर ये अरबों डॉलर की सरमायाकारी मैदान जंग में कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है? ये सवाल जन्म ले रहे थे और ये सवाल का जवाब कल रात मिल गया। भारतीय बहरिया पिछली एक दिहाई से चीन की बढ़ती हुई बहरी मौजूदगी पर मुसलसल तशवीश का इजहार करती आई। बीजिंग ने न सिर्फ बहरे हिंद में दोहरी मकासद रखने वाले जहाज तैनात किए, बल्कि 2017 से अफ्रीकी मुल्क जबूती में अपना मुस्तकिल फौजी अड्डा भी कायम कर लिया। और चीन की इस अस्करी हिकमत अमली ने भारत को खित्ते में अपने दिफाई दायरे को मजबूत करने पर मजबूर किया। कहता तो वो दिफाई दायरा था, लेकिन वो जारहियत का एक बुनियादी तौर पे उनसर था और वो खित्ते में अपनी ताकत को बढ़ा के दिखाना चाहता था। इसी तनाजुर में भारत ने फ्रांस की दिफाई सनत के ऊपर इन्हिसार करते हुए राफेल तैयारों की एक नई खेप खरीदने का फैसला किया। और यह फैसला सिर्फ मौजूदा सिक्योरिटी खदशात का जवाब बना के किया गया और इसके साथ साथ भारत और फ्रांस के देरीना दिफाई ताल्लुकात के तसलसल के तौर पे किया गया, जो 1980 की दिहाई में मिराज 2000 लड़ाका तैयारों की खरीदारी से शुरू हुआ और 2005 में स्कॉर्पियन क्लास आबदोजों के ऑर्डर तक पहुंचा था। और भारत के इस ताज़ा इकदाम से यह जाहिर हो रहा था कि वो चीन के तेज़ रफ्तार बहरी कदमों का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ फ़ज़ाई बल्कि समुद्री महाज के ऊपर खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन हदफ चीन दिखाया जा रहा था, असल में हदफ पाकिस्तान था। फिर उनके अपने लोग सवाल उठाने लगे कि क्या सिर्फ हथियार खरीदने से वो इस स्ट्रेटेजिक दबाव का मौसर जवाब दे सकेगा, जिसमें चीन ने पहले ही कई बरस की मनसूबाबंदी से अपनी जगह बनाई है और पाकिस्तान के साथ उसका इश्तराक जारी है। जब किसी मुल्क की दिफाई मसनूआत आलमी सतह पर रुसवाई का बायस बनने लगे तो यह मामला महज एक कंपनी या एक सौदे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आलमी सियासत के गहरे तालाब में इर्ताश पैदा करता है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय राफेल तैयारों को मार गिराना और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन के शेयर्स का ज़मींबोस होना सिर्फ एक तकनीकी नाकामी नहीं है, बल्कि यूरोपीय दिफाई सनत की साख के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। फ्रांस जो खुद को यूरोपीय यूनियन के दिफाई सतून के तौर पर पेश करता है, अब इस वाक़े के बाद सियासी दबाव का शिकार है, खुसूसन उन ममालिक की जानिब से जो फ्रांस से दिफाई मुआहिदा करने के ख्वाहिशमंद है। वो कह रहे हैं कि तुम अपने तैयारों को ओवररेटेड करते हो। फ्रांसीसी ऑपोजिशन और मीडिया पहले ही डिसॉल्ट के सौदों में शफाफियत पर सवाल उठाते रहे और अब जब पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया, तारीख में पहली बार हुआ है कोई भी 4.5 जनरेशन का तैयारा गिरा, और पहली बार हुआ कि वो गिराने वाले पाकिस्तानी थे। जब पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि भारतीय राफेल ज़मीनी हकीकतों में वैसा मौसर नहीं जैसा कागज़ों में दिखाया गया, तो यूरोपीय यूनियन के अंदर भी यह सवाल गूंज सकता है कि क्या फ्रांस अपनी इत्तेहादी हैसियत के तहत दिफाई बरामदात में ज़मीनी आजमाइश के बगैर मुआहिदे कर रहा है। मजीद ये कि अगर फ्रांस भारत से राफेल तैयारे वापस लेने की बात करे तो फिर कहीं जाके सुकून होगा, लेकिन यह सिफारती सतह पे भारत के लिए जबरदस्त तज़हीक का बायस बनेगा, खुसूसन ऐसे वक्त में जब वो खुद को पाकिस्तान के मुकाबले एक मुस्तहकम ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल रात मुंह की खाना पड़ी। आलमी सियासी मंजरनामे में इस वाक़े का असर न सिर्फ फ्रांस और भारत के दरमियान दिफाई ताल्लुकात पर पड़ने वाला है, बल्कि अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों के लिए भी एक अहम मौका है कि वो भारत को अपने दिफाई कैंप की जानिब खींचने की कोशिश करें। इसी तरह पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी चीन
की मदद से JF-17 थंडर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाकर उसे उन अफ्रीकी और एशियाई ममालिक में भी मकबूल कर सकती है जो महंगे मगरबी हथियारों का मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। यूं ये मामला महज एक तैयारा गिराने तक महदूद नहीं है, बल्कि एक नई सिफारती सफबंदी और दिफाई इत्तेहादियों की कशमकश और असलहे की आलमी मार्केट में तवाजुन बदलते रुझान का पेश खैमा बन चुका है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय राफेल तैयारों को मार गिराए जाने के बाद यह सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान दिफाई मामला नहीं रहा, पूरे खित्ते में असरात मुरतब करने वाली एक बड़ी तब्दीली बन चुकी है। और जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता में जो सियासत और दिफाई हिकमत अमली की बुनियाद रही, वो अब एक नए पहलू के साथ सामने आ रही है। भारत की तरफ से फ्रांस के साथ राफेल मुआहदे की तकमील और उसकी मार्केटिंग ने भारतीय फौज की ताकत को बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उस तैयारे को नाकाम बनाना इस बात का गवाज है कि दुनिया की सबसे बड़ी दिफाई ताकत जो है वो जदीद हथियार रख के भी मुकम्मल तौर पे महफूज नहीं है। जनूबी एशिया में जहां पाकिस्तान और भारत की कशमकश तारीख पर मबनी है, वहां पाकिस्तान की कामयाबी ने पाकिस्तान के दिफाई एतबार को मजीद मजबूत किया और उसके असरात भारत की दिफाई पॉलिसी पर गहरे डलेंगे और इसका असर चीन और रूस जैसे ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात पर भी पड़ेगा। ज्यादातर ममालिक मशरक़ वस्ता में अपने दिफाई मुआहदे मगरबी ताकतों के साथ कर चुके हैं। इस वाक़े का एक और अहम पहलू यह होगा कि वो ममालिक अब अपनी दिफाई खरीदारियों में मुतबादिल ज़राए की तलाश में होंगे। पाकिस्तानी कामयाबी ने न सिर्फ भारत बल्कि उन तमाम ममालिक के लिए एक पैगाम दिया जो मगरबी हथियारों के मायार और कारकर्दगी पर शक करते थे। JF-17 थंडर जो पहले ही कई ममालिक में मकबूल हो चुका है, अब उन ममालिक के लिए एक मकबूल मुतबादिल साबित हो सकता है जो मगरबी हथियारों से मोहतात है। उसी तरह मशरक़ वस्ता के ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, दीगर खलीजी रियासतें जो मगरबी हथियारों पर इन्हिसार करती हैं, उनके लिए एक अहम मौका होगा कि वो अपने दिफाई स्टॉक को तनू फराहम करें। उस बात पर गौर करें कि पाकिस्तान की तरह उनके दिफाई मनसूबे भी मगरबी हथियारों की कमजोरी से बचा के चलाए जाए। इस तमाम मंजरनामे में आलमी ताकतों अमरीका और रूस के किरदार भी नज़रअंदाज नहीं हो सकते। अब इस बात के ऊपर गौर हो सकता है कि भारत की दिफाई कामयाबियां और नाकामियां उसके साथ ताल्लुकात में किस नौइयत की तब्दीलियां ला सकती हैं, और यही सबसे बड़ा धचका है जिसने दिफाई मार्केट को एक नई समत में खड़ा कर दिया है और उसका आलमी सतह पर असर पड़ने के इम्कानात बढ़ चुके हैं। अब दिफाई हिकमत अमली, हथियारों की मार्केटिंग और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की नौइयत में तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।